टॉपिक इज आइडेंटिटी रिलेशन। एक सेट है ए सेट में एलिमेंट्स है ए बी सी। ए क्रॉस ए रिलेशन ऑन द सेट ए क्रॉस ए। इसमें पहला एलिमेंट लेंगे ए ऑर्डर पेयर का, दूसरा भी एलिमेंट ए होना। ए इज रिलेटेड विथ ए, बी इज रिलेटेड विथ बी, सी इज रिलेटेड विथ सी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ। सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। दिस ऑर्डर पेयर ए दैट मीन्स ए इज related with A. Ordered pair BB, that means B is related with B. Ordered pair CC, that means C is related with C. If every element is related with itself, then this relation is said to be identity relation. The relation is said to be identity relation. If the relation A is given by A is related with A for every A belongs to set A. Set A के हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रू होना चाहिए। एलिमेंट इज रिलेटेड विथ itself. Then the subset given by this relation is set of all elements, set of all ordered pairs A comma A, such that A belongs to set A. That means A is related with B if B equal to A. A और B दोनों एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। Then this relation is said to be an identity relation. ये relation होगा identity relation. Identity relation में every element of set A is related with itself. Then the relation is said to be identity relation. Types of relation. Types of relation में जैसे एक set है A. A set में elements होते हैं 1, 2, 3. सेट ए में तीन ही एलिमेंट है। एक रिलेशन है आर। आर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 1। फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, every element A belongs to set A. If A is related with A, जैसे आइडेंटिटी की केस, A is related with A, that means the ordered pair A comma A belongs to set R. यदि ordered pair A comma A R को belong करते हैं, the relation is said to be reflexive relation. जैसे एलिमेंट है पहला 1 है, तो 1, 1 belongs to R. सेकंड एलिमेंट है 2, 2, 2 belongs to R. 3, 3, 3 belongs to R. बाकी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उससे अब तक लेना देना नहीं है। अब इससे देखेंगे कि A सेट में तीन एलिमेंट्स हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related with itself. That means order pair A comma A belongs to set R. Then the relation is said to be reflexive relation. That means for every A belongs to A is related with A, या फिर ऐसा लिख सकते हैं A comma A belongs to R. ये दोनों भी सेम है, एक तो ऐसा लिखो और इस तरीके से। इसकी डेफिनेशन, let A be an non-empty set, then a relation R on A is said to be reflexive if ordered pair A comma A belongs to R for every A belongs to set A. सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर A R में होना चाहिए। सेकंड, अभी मैंने रिलेशन दिया था A सेट 1, 2, 3, रिलेशन R इसमें 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। अब इसमें 3, 3 नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर 3, 3 नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब एलिमेंट है 1, 2 बिलोंग्स टू R, तो 2, 1 also belongs to R.
if A is related with B, then B is also related with A. A यदि B के साथ में रिलेटेड है तो B A के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर A comma B belongs to R, then ordered pair B comma A also belongs to R. ये भी कंडीशन है, so relation is said to be symmetric. सेकंड रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का बोलेंगे अपन, if ordered pair AB belongs to R implies ordered pair BA belongs to R for every AB belongs to set A. That means if A is related with B, then B is also related with A for all AB belongs to set A. रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन कौन सी है? A is related with A, ordered pair AA belongs to R. सिमेट्री के लिए ऑर्डर्ड पेयर AB यदि R में है तो ऑर्डर्ड पेयर BA भी R में होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर BA also belongs to R. If A is related with B, this implies B is related with A. Third है ट्रांजिटिव। रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, 3, 1, 3 और 1, 1। यदि ऑर्डर्ड पेयर AB रिलेशन R में, ऑर्डर्ड पेयर BC R में, अब इसमें पहला फर्स्ट ऑर्डर पेयर है AB जिसमें सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर BC इसमें फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होना चाहिए। यदि ये कंडीशन है तो दिस मस्ट इंप्लाई कि ऑर्डर पेयर A, C also belongs to R। यदि AB भी R में है, BC R में है तो AC भी R में होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। 1, 2, 3 तो 1, 3 भी है, 1, 3 also in the set R, तो ये रिलेशन R ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन कौन सी है? If AB belongs to R, ordered pair BC belongs to R, AB तो BC होना, then AC ordered pair also AC belongs to R for all ABC belongs to set A. That means if A is related with B and B is related with C, this implies A is related with C. The relation is said to be transitive. यदि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, so that relation is said to be equivalence relation. Equivalence relation is the relation which is reflexive, symmetric, transitive. Relation is reflexive, symmetric, transitive. Reflexive means A is related with A for all A belongs to set R A. Second, A is related with B, then this implies B also related with A. Then reflexive symmetric. If A is related with B and B is related with C, this implies A is related with C. Then it is transitive. Reflexive A related with A. Symmetry के लिए A related with B implies B related with A. Transitive के लिए A related with B and B related with C, then A is also related with C. That means transitive. And तीनों भी है relation यदि तीनों भी है reflexive, symmetric, transitive, then it is said to be an equivalence relation. और एक रिलेशन है congruence modulo। दो नंबर्स है A और B, A minus B divides M. If A minus B divides M, then we say that A is congruent modulo M to B. N is positive integer. A is equal to B mod M. A equal to B mod M. ये कब बोलेंगे अपन कि if A minus B is divisible by M, यहाँ पे let M be the integer, any positive integer, M be any positive integer,
A equal to B mod M if A minus B is divisible by M. तो इसको पढ़ने कैसे? A is congruent modulo M to B. A is congruent to B modulo M. Here B congruent to B modulo M. Correction है यहाँ पे. A is congruent to B modulo M. That means A minus B is divisible by B, and A minus B is divisible by M. There is 4 minus 8 minus 4. 8 minus 4 is equal to 4. If this is divisible by 2, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अपन लिखेंगे 4 is congruent modulo to 8 mod M, congruent modulo to M mod 2. That is congruence modulo relation. बाद में नोट में कुछ पॉइंट्स है जो एग्जांपल में काम में आते हैं. यदि A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है M, B सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है N, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं M into N, Mn. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स. A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है Mn, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे 2 raised to Mn. यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? तो 2 raised to Mn. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस S फ्रॉम A to B इज 2 raised to Mn. यदि यहाँ पे सेट A और B की जगह A और A लेते हैं, if R is the relation on set A, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है M, तो A क्रॉस A है रिलेशन R. रिलेशन R में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? M into M स्क्वायर. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे? 2 raised to M स्क्वायर. यहाँ पे जैसा 2 raised to Mn, M into M, that is M square. R represents R. Relation R represents the set of real numbers on number line. R cross R लेते हैं the set of all ordered pairs in Cartesian plane. Cartesian plane में x axis, y axis, a point जो लिखते हैं अपन ordered pair A, B, 1, 2, 2, 3, 3, 4. The set of all ordered pairs, and set of all the points in Cartesian plane. R cross R. It represents set of all ordered triplets. Pairs है तो Cartesian plane. Triplet है तो 3 dimensional space के डायग्राम हो गए. यहाँ पे तीनों एक्सेस रहते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जो अपन बाद में देखेंगे. 2 एक्सेस है तो Cartesian plane बोलते हैं, और 3 एक्सेस है तो कार्टेशियन प्लेन की जगह 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी R cross R represents set of all ordered triplets in 3D, 3 dimensional space. इसके then examples. पहला A cross B में ordered pairs है 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4. Then find A and B. A cross B में ordered pairs रहते हैं A, B. A, B में पहला एलिमेंट A सेट कर रहा था और सेकंड एलिमेंट B सेट कर रहा था. सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A. यानी A सेट में एलिमेंट्स कौन रहेंगे? फर्स्ट एलिमेंट है 3, वहां पे भी वापस बाद में 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है. सिर्फ रिपीटेशन नहीं लिखते अपन, ये 3 डबल हो गए, 5 डबल हो गए, तो 3, 5. A equal to set of all first components of A cross B. Set A means set of all first components of A cross B. A first components है 3, 5, 3, 5 A set.
बी सेट में सेकंड कंपोनेंट रहेंगे, बी सेट में सेकंड कंपोनेंट है 2 4, अगेन 2 4, 2 4 रिपीट हो गए, यानी दो ही रहेंगे 2, 4. बी में सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मींस 2, 4. पहला एलिमेंट यानी ए सेट का और सेकंड एलिमेंट रहेगा बी सेट का. सेकंड एग्जांपल है इफ ordered pair x minus 1 y plus 4 is equal to ordered pair 1 2, then find the values of x and y. Definition of equal ordered pairs. दो ऑर्डर पेयर यदि इक्वल है तो दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल, दोनों के सेकंड कंपोनेंट इक्वल. कंडीशन कौन सी है? x ऑर्डर पेयर x minus 1 y plus 4 इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1 2. इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट x minus 1 इक्वल टू 1, सेकंड कंपोनेंट y plus 4 इज इक्वल टू 2. ये दोनों इक्वल. By equality of ordered pairs, x minus 1 equal to 1, y plus 4 equal to 2, x equal to minus 1 को ट्रांसफर किए इधर तो 1 plus 1, यानी x equal to 2, y equal to 2 minus 4, 2 minus 4 means minus 2, तो x equal to 2, y equal to minus 2. Ordered pair, दो ordered pairs equal है तो by definition of ordered pairs their first components are equal, x minus 1 equal to 1, second component equal, y plus 4 equal to 2. x minus 1 equal to 1 means x equal to 1 plus 1, x equal to 1 plus 1 means x equal to 2, y plus 4 equal to 2, y equal to 2 minus 4, 2 minus 4 means minus 2. Then we move to next example. Similar type है, ऑर्डर्ड पेयर है x plus 1 by 3 y by 3 minus 1 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 1 by 2 3 by 2. दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x plus 1 by 3 इक्वल टू 1 by 2 एंड y minus 1 इक्वल टू 3 by 2. अब ये 1 by 3 ट्रांसफर यानी x इक्वल टू 1 by 2 minus 1 by 3, y by 3 equal to minus 1 ट्रांसफर किया तो 3 by 2 plus 1, y equal to x equal to 1 by 2 minus 1 by 3 and y by 3 equal to 3 by 2 plus 1. यहाँ पे एलसीएम आ गया 6, न्यूमरेटर 3, 1 into 3 means 3, minus 2 into 1 means 2, 3 minus 2 1 by 6, यानी x की वैल्यू हो गई 1 by 6. यहाँ पे y by 3 इक्वल टू 3 by 2 plus 1, 3 plus 2, 2 into 1 2, 3 plus 2 5, 5 by 2, y equal to 3 into 5 upon 2 and y equal to 15 by 2 and x equal to 1 by 6, y equal to 15 by 2. ये हो गया आंसर x और y के वैल्यूज. फोर्थ एग्जांपल में ए सेट गिवन है ए बी सी, बी सेट गिवन है एक्स वाई, ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी. ए सेट है ए बी सी, और बी सेट है एक्स वाई. पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए सेट का और दूसरा एलिमेंट बी सेट का. अब पहला एलिमेंट लेते हैं ए, तो ए के साथ में ऑर्डर पेयर कौन जाएंगे? ए के साथ में एक्स, ए के साथ में वाई. पहला एलिमेंट लेते हैं बी, तो बी के साथ में आएगा एक्स, बी के साथ में वाई. बाद में पहला एलिमेंट सी, तो सी के साथ में एलिमेंट है एक्स, सी के साथ में एलिमेंट है वाई. दिस इज ए क्रॉस बी. अब ये बी क्रॉस ए, बी क्रॉस में पहला एलिमेंट यदि एक्स लेते हैं तो एक्स के साथ में लेना है ए, एक्स के साथ में बी, एक्स के साथ में सी, यानी एक्स ए, पहला एलिमेंट एक्स, एक्स बी, एक्स सी.
पहला एलिमेंट x b सेट का और दूसरा एलिमेंट a सेट का, a सेट का a b c। बाद में y के साथ में कॉम्बिनेशंस कौन लेंगे, y a y b y c। बाद में a क्रॉस a, ए सेट में एलिमेंट्स है ए बी सी, वापस है ए सेट एलिमेंट्स है ए बी सी, 3 into 3 9 एलिमेंट्स आएंगे। पहला ए के साथ में ए के साथ में बी, ए के साथ में सी, ए बी ए सी। पहला एलिमेंट ए लिया तो ए के साथ में तीनों ए बी ए सी। बाद में लेंगे बी के साथ में बी ए बी 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 सी, बी ए बी 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 सी। बाद में थर्ड एलिमेंट लेना है सी के साथ में ये तीनों एलिमेंट सी ए सी बी सी सी। This is A cross A. Similarly, B cross B. B set में एलिमेंट्स है x, y। फिर से B सेट में एलिमेंट्स x, y। ये x दोनों के साथ में x y, फिर y के साथ में y x y y। पहला ऑर्डर पेयर x y के बाद में y x y y, जो कि b क्रॉस b। नेक्स्ट एग्जांपल है ए सेट है ए बी सी, P सेट है 1 2 3, Q सेट है 1 4। P क्रॉस Q और Q क्रॉस P निकालना है। P सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, Q सेट में एलिमेंट्स है 1 4, एंड फॉर P क्रॉस Q ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट P सेट का, सेकंड एलिमेंट Q सेट का। अब पहला एलिमेंट लेते हैं 1, तो 1 के साथ में 1 के साथ में 4, ऑर्डर पेयर 1 1 1 4। बाद में एलिमेंट लेंगे 2, P सेट का पहला एलिमेंट 2, P सेट फर्स्ट एलिमेंट P सेट का 2 के साथ में Q का 1 और 2 के साथ में नेक्स्ट एलिमेंट 4। बाद में पहला एलिमेंट लेंगे 3, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 3 लेना है P सेट का, 3 1 और 3 4। बाद में निकालना है Q क्रॉस P। अब Q क्रॉस P में पहला एलिमेंट Q सेट का लेंगे, Q सेट का 1, तो 1 के साथ में 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3। पहला एलिमेंट 1 Q सेट का और 1 2 3 P सेट के हो गए। बाद में Q सेट का एलिमेंट है 4 के साथ में 1, 4 के साथ में 2, 4 के साथ में 3। एग्जांपल नंबर 6 नंबर है ए सेट और बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई एंड प्रूव दैट
सबसे पहले लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स है 5 6। बाद में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे पर ए सेट और बी इंटरसेक्शन सी। 1 के साथ में 5 और 6 यानी 1 5 1 6। बाद में 2 के साथ में 2 5 2 6। बाद में 3 के साथ में 3 5 3 6। बाद में 4 5 4 6। इसको देंगे नंबर 1। बाद में निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए और बी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस। 1 4 के बाद में 1 5 1 6। बाद में 2 के साथ में 2 4 2 5 2 6। बाद में एलिमेंट 3 4 3 5 3 6। बाद में 4 के लिए 4 4 4 5 4 6। ए क्रॉस बी के बाद में ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में 5 6 दो ही एलिमेंट्स है। 1 के साथ में 5 1 के साथ में 6 यानी 1 5 1 6। बाद में एलिमेंट 2 के साथ में 2 5 2 6। एलिमेंट 3 के साथ में 3 5 3 6। बाद में एलिमेंट 4 के साथ में 4 5 4 6। बाद में इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन है 1 5 1 5 कॉमन है, ये 1 5 1 6 कॉमन है 1 6। बाद में 2 5 कॉमन है, ये 2 5 2 6 2 6। then 3 5 3 5 3 6 3 6 4 5 4 5 4 6 4 6। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये अंडरलाइन किए हुए ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। नंबर 2, दोनों सेट में ऑर्डर पेयर सेम है 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 and therefore from 1 and 2 from 1 and 2 A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Okay.
सिमिलरली ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी भी सॉल्व करके देख सकते हैं। घर पे एग्जांपल सॉल्व करके देख लो यूनियन के लिए।